the amount of work done to raise the mass small m from the surface of the earth to the height equal to the radius of the earth r will be. In this question you cannot directly use the formula for change in potential energy, which is actually a work done, and the formula goes like this: potential energy is equal to mgh. That represents the work done, but we cannot use it here because that formula is for the displacement near the surface of the earth. In this case the displacement is very high, equivalent to the radius of earth. Therefore therefore here we will have to use the variable force formula. Therefore, we get work done is equal to integral of r to 2r, because we are starting from the surface of the earth, और अर्थ के सरफेस के लिए तुम्हारा जो रेडियस है वो है r, और कहाँ तक जा रहे हैं हम, जा रहे हैं 2r तक. therefore we get 2r as the upper limit. So in this case we'll have to substitute it f into dr, but f is nothing but r to r, f is nothing but g capital M small m divided by r square dr. And if you solve the integral, you will get the solution as minus g capital M small m divided by small r. The integration goes like this, and here we will have limit r to 2r, and here we'll have to substitute the limit in both the cases. So by solving this we'll get 2r minus, it becomes plus, minus minus plus, so g m small m upon capital R. If you take the subtraction here, what will you get? So you'll get 1 minus 1 by 2, isn't it? G capital M small m, G capital M small m, and R will be constant outside the equation. So therefore we'll get G capital M small m divided by R. Here we'll multiply and divide by R, therefore we'll get G m small m upon R square, and here we'll get R. This term here is nothing but your small g, acceleration due to gravity near the earth's surface. Here we get answer 1 by 2. Here we have m small m जैसा था वैसा ही, g acceleration due to gravity, and r. So this is our solution, and the answer will be mg r by 2. This will be our answer. Let's jump to the next question. Okay, now what is the next question that we need to read first? Each side of the metallic cube of mass 5.580 kg is measured to be 9.0 centimeter. Keeping the significant figures in the view, the density of the material of the cube can be best expressed as x into 10 raised to 3 kg per meter cube, where the value of x is. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा डेंसिटी का है ही नहीं. एक्चुअल में हमारा जो क्वेश्चन है इट इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब यहाँ पे जब दो नंबर्स का डिवीजन हो रहा है, उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कौन सा रूल अप्लाई करना होता है? तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल है दैट इज एक्चुअली, तुमको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जिस नंबर का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में, उतने ही डेसिमल आपको ले, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको लेने. तो यहाँ पे 5, ये वाला जो नंबर है इसके सिग्निफिकेंट फिगर से 4 और इसके सिग्निफिकेंट फिगर से 2. दिस जीरो विल आल्सो काउंट बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ डेसिमल एज वेल एज द नॉन जीरो नंबर. सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2. तो हमको कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे? सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये दो जो सवाल आंसर्स है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं. और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे और इसका आंसर अगर निकालोगे तो दैट आंसर विल बी नियर टू दिस नंबर. ओके, और इसको अगर तुम ये करोगे, हाँ, इसको अगर तुम कन्वर्ट करोगे दो सिग्निफिकेंट फिगर में, तो बाय यूजिंग द रूल फॉर द 5, इफ देयर इज एन
even number here before the 5, it remains as it is. Therefore, we have the answer second one. Now, let's jump to the next question, which is 15th question. अब यहाँ पे the following plot shows the variation of the velocity with time of the ball thrown vertically upward and falling back. Which of the following plots is or are correct? अब यहाँ पे इनमें से कौन सा जो प्लॉट है वो करेक्ट है, हमको चेक करना है. अब जब भी किसी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो, तब उस समय उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी या जो वेलोसिटी होगी उसकी, वो कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास एक इक्वेशन है. क्या है हमारा वो इक्वेशन? दैट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. ये इक्वेशन तुम्हारे, अगर तुम स्टेट बोर्ड से हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, तो तुम्हारे शायद फर्स्ट चैप्टर में या किसी एक चैप्टर में हुआ है, शायद फर्स्ट चैप्टर में, 10th में हुआ है. उसके बाद हमने ऑलरेडी वो 11th में भी सीखा है. यहाँ पे g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस जी into t plus u. If you compare it to the equation of line, this becomes equation of line. If you compare it with the equation of line, you get uh, what is the equation of line का equation होता है y is equal to mx plus c, where m is the slope. यहाँ पे जो slope है वो negative है, minus g. That means you should get a negative slope. Negative slope मतलब जहां पे जो वैल्यूज है, ये इस तरह का जो डायग्राम होता है, इस केस में तुमको जो स्लोप मिलेगा, दैट विल बी नेगेटिव. ओके, लेट मी चेक. डी वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेट करोगे, ये है तुम्हारा x1 x2, सॉरी, ये सी वाला जो डायग्राम है, सॉरी, सी वाले में जो है हमको नेगेटिव स्लोप दिखने को मिल रहा है, तो दिस इज योर नेगेटिव स्लोप. सो ये तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव स्लोप है. बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली बाय यूजिंग बेसिक और द इक्वेशन ऑफ लाइन, वी कैन डायरेक्टली से दैट हियर वी गेट नेगेटिव स्लोप. दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं. ये था 15th, तो 16th क्वेश्चन पे जाते हैं. नाउ लुक एट द 16th क्वेश्चन. Sum of the kinetic energy and the potential energy of the simple pendulum bob is 0.02 joules. The speed of the simple pendulum bob at equilibrium position is approximately, consider mass of the bob as 20 gram. So mass of the bob दिया है, which is 20 gram, which is equal to 2 into 10 raised to minus 2, which is also equal to 0.02. This is your mass of the bomb. और उसी के साथ उन्होंने दिया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, दैट मींस टोटल एनर्जी. और टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0.02. दिस इज योर टोटल एनर्जी. नाउ जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या? इट इज नथिंग बट द मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन पे योर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, विच इज के मैक्स, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दैट पोजीशन. तो ये जो के मैक्स है, ये कितना होता है? के मैक्स विल बी इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर. Therefore, here we get ke max is nothing but total energy, which is 0.02 is equal to 1 by 2 mass 0.02 v square, v max square. ये 2 यहाँ पे जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो we will get 2 is equal to v max square. Therefore, v m or v is equal to square root of 2, which is equal to 1.41. So this is your right answer, 1.41. So let's jump to the next question.
Okay, let's jump to the next question, which is the 17th question. In Young's double slit experiment, using the monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k. The intensity of the light at a point where the path difference is lambda by 3 will be. अब इस सवाल में आपको क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, I इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू कॉस फाई बाय टू, वेर फाई इज फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? फेज डिफरेंस इज 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस विच इज L. इसको हम डेल्टा भी बोल सकते हैं, डेल्टा L डेल्टा फाई, दैट्स ऑल्सो कंप्लीटली फाइन. सो ये जो फेज डिफरेंस है फाई, या सिंपली जो फाई है, दिस फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एल. तो ऑलरेडी हमको पता है जो फर्स्ट केस है वहां पे पाथ डिफरेंस कितना बोला है उन्होंने? पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट लैम्डा, सो वी गेट 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा. तो ये जो है फाई जो है वो 2 पाई आ रहा है, और अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आई बिकम्स इक्वल टू आई मैक्स विच इज इक्वल टू के. सो उन्होंने इनडायरेक्टली बताया हमको कि आई मैक्स का वैल्यू जो है दैट इज के. अब इसको और ज्यादा सॉल्व बस तुरंत हो जाएगा. अभी इसमें बस हमको क्या करना है, सिंपल वही फॉर्मूला हमको वापस यूज करना है. आई इज इक्वल टू के, आई मैक्स की जगह पे हम के लिखेंगे क्योंकि उन्होंने के ही दिया है. कॉस ऑफ, अब कॉस ऑफ फाई का वैल्यू कितना है वो हमको नहीं पता, तो हमको निकालना पड़ेगा लैम्डा बाय 3 के लिए. अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला, फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एल. एल का वैल्यू दिया है लैम्डा बाय 3, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3. सो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कट और हमको मिलता है 2 पाई बाय 3 विच इज 5. ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई मैक्स इज इक्वल टू के कॉस ब्रैकेट में 2 पाई बाय 3 divided by 2. So we get at the end k cos square है यहाँ पे, सॉरी, k cos square पाई बाय 3. पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर है 1/4. सो वी गेट k by 4. दैट्स द आंसर. यहाँ पे सिंपल था, बस एक ही फॉर्मूला यूज करना था, कुछ चीजें गिवन थी उनको समझना बहुत जरूरी है. Let's jump to the next question. In the circuit shown below, the voltage appearing across the diode D will be of the form what? What will be the form? So आपको पता है या आपको पता होना चाहिए, ये सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे अगर हमने डायोड कनेक्ट किया है तो जब भी फॉरवर्ड बायस है, जब भी पॉजिटिव साइकिल है, द डायोड विल conduct, and whenever there is a negative cycle the diode will not conduct, so we will get a flat line representing zero voltage, okay, across the diode. So in this case the output जो है हमारा वो कुछ इस तरह से दिखेगा. क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पे जब इनपुट में पॉजिटिव साइकिल आई है तो वापस हमको पॉजिटिव साइकिल नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि ये एक ही डायोड है, सिंगल डायोड हम यूज कर रहे हैं. तो इट इज जस्ट लाइक इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर. सो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वही हमको यहाँ पे मिलने वाला है, और वो आउटपुट कुछ इस तरह से दिखता है. सो फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन. Let's jump to the next question. It is, I guess, 19th one. An AC circuit contains a resistance of 1 kilo ohm, the capacitance of 0.1 microfarad, and the inductor of 1 millihenry. Connected in series, the resonance frequency of the circuit is approximately. That's our question. और इस सवाल में हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है. तो एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, उसको जो फॉर्मूला है वहां पे रेजिस्टेंस कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस का कोई फायदा ही नहीं है वहां पे.
तो मेजरली यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, दैट फॉर्मूला विल बी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। एल सी का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। एल सी का जो वैल्यू है वो दैट इज 0.1 माइक्रोफेराड एंड 1 मिलीफेराड। तो ये 0.1 मिली, ये 1 मिलीफेराड मतलब 10⁻³ 0.1 माइक्रोफेराड मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁹ और 0.1 को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे तो विल गेट 10⁻⁻, वेट अ सेकेंड, माइक्रो है तो 0.1 इंटू 10⁻⁶, और 0.1 को भी लेंगे तो हमको मिलेगा 10⁻⁷। सो 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻3 यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁻10, दैट गिव्स यू 1/2 पाई 10⁻⁵, so which is 1/2 पाई 10⁻⁵ ये हमारा आंसर आएगा। तो 1/2 पाई का जो वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज 2 पाई का जो वैल्यू है, जो पाई का वैल्यू है वो 3.14 होता है। पूरा लेने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन के लिए। सपोज मैंने ऐसे कर लिया 2 इंटू 3 अप्रोक्सीमेट विच इज 6, 1/6। 1/6 का वैल्यू जो है वो कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 1.666। क्योंकि ये डिनोमिनेटर ना 3 है, ये 3.14 है, that means our value will be near to 1.66, which will be less than 1.66. Where do we have a value which is less than 1.66? There are many values. तो उसमें से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी किया था, एक सेकेंड। तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो इट इज नियर टू 1.59। फिर भी आप कैलकुलेशन कर लो। अब आपको पता है कि कौन सा आंसर कैसे निकालना है। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको बस 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है। यू कैन कैलकुलेट इट एट होम। सो मेरा जो आंसर है वो 1.66 के करीब होना चाहिए था, विच इज 15.9 किलो ओम। क्यों? अब देखो 1. ये जो आंसर है ये, सॉरी, ये 1/6 है, दैट मीन्स 0.16 होगा। और 0.16 इंटू 10⁵ है, तो इट बिकम्स 16 इंटू 10⁻³ तो ये इस तरह से आंसर 16 के करीब का नंबर ये है। 16.66 होता है और उसके करीब का नंबर 15.9 है। ओके, सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the interference and diffraction, the light energy is redistributed. If it reduces in one region, producing a dark fringe, it increases in the another region, producing a bright fringe. ये हमको स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट ऑप्शन जो ए है, ए हमको क्या बता रहा है? एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, दस फेनोमेना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहां पे ना एनर्जी ले रहे हैं ना दे रहे हैं, यहाँ पे ना क्रिएट हो रही है ना लूज हो रही है। जहां पे ब्राइट स्पॉट है उसी के बगल में हमको डार्क स्पॉट मिलता है। तो डार्क स्पॉट में एनर्जी कम हुई है तो उतनी एनर्जी ब्राइट स्पॉट पे बड़ी होगी। दैट मीन्स एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगी, यहाँ पे भी, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में भी। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट होना चाहिए। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। Okay, the second statement, diffraction and interference are the characteristics exhibited only by the light waves. Okay, light wave diffraction और interference ये characteristics show करती है, ये हमको पता है। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे एक वर्ड पे फोकस करना बहुत जरूरी है, दैट इज ओनली। ओनली मतलब सिर्फ लाइट में ही दिखाई देता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो ये सही नहीं है क्योंकि वो वेव की प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। देयरफॉर सिर्फ लाइट में नहीं दिखाई देगी, हर तरह के वेव में हमको दिखाई देगा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ओके, तो इंटरफेरेंस का तो अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे जो वाटर होता है। वाटर में अगर तुम दो वेव्स अगर जनरेट करोगे, दो अलग अलग पॉइंट पे अगर हाथ रखोगे तो वेव्स जनरेट होगी। जहां पे वो दो वेव्स एक साथ आ रही है, जहाँ पे वो एक साथ आएगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक प्लेन की करीब, तो वहां पे तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा ही पैटर्न दिखाई देगा वाटर वेव्स में भी।
तो ये वेव की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स हमारा पहला ए शुड बी ट्रू एंड बी शुड बी फॉल्स। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ओके, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। दैट्स द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज 21st। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है हमको, वाई टी, ये एक फॉर अ ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, वाई टी इज इक्वल टू 2.0 cos 2 pi 10 t minus 0.0080 x plus 0.35, where x and y are in the centimeter and t is in the second. The phase difference between oscillatory motion of 2 points separated by 0.5 meter. Here the unit is meter. Here the unit is meter. We will convert it into centimeters. So how many centimeters? 0.5 meters. मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया? It will be 50, isn't it? So ये है 50 meters. ये 50 meters मतलब क्या दिया है? It is nothing but your path difference. डेल्टा एल। और थोड़ी देर पहले ही हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, अगर आपको याद हो, डेल्टा फाई is equal to 2 pi by lambda into delta L। यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 pi by lambda is और 1 upon lambda is nothing but वेव नंबर k। तो यहाँ पे k की वैल्यू दी हुई है, तो जो k है वेव नंबर है, उसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 पाई, ओके सॉरी, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्बडा, ये हमको ऑलरेडी पता है। हाउ मच इज इट? 2 पाई इंटू 0.008। ओके, सो विल सब्सटीट्यूट दैट हियर। पाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.0080 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो कितना आएगा ये देखो, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करें, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो विल गेट 100। 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर विल गिव यू हाउ मच? 2 डेसिमल्स जो है वो राइट में शिफ्ट होंगे तो विल गेट 0.80। दैट्स आवर डेल्टा फाई फेज डिफरेंस। ओके, तो ये कहाँ पे है? ये वाला आंसर। उसके बाद का क्वेश्चन देखो, 22nd question. The magnitude and the direction of the acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton act on it are respectively. Okay, तो हमको बोला गया है कि magnitude and direction of the acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces are acting on it. तो दो फोर्सेस है जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, हम उसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक है हमारा, एक है हमारा ये, और एक है ये। सपोज 8 न्यूटन का यहाँ पे है, 6 न्यूटन का यहाँ पे है। ओके, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, सपोज ये कहीं बीच में है, यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा। अगर ये थीटा है तो पहले तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा फोर्स का। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? तो इसके लिए तुमको क्या है, इसको अगर तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसीडर कर लो, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। ये यूनिट वेक्टर होता है आई कैप सपोज इन दिस केस, और यहाँ पे हम जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो उनको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके पर्टिकुलर डायरेक्शंस को। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना आएगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ बार विल बी इक्वल टू square root of 8 square plus 6 square which is nothing but 10। अगर तुम सॉल्व करो तो f का वैल्यू जो है वो 10 आ रहा है। अब f का वैल्यू अगर 10 है तो एक्सेलरेशन का कितना आएगा? ma is equal to 10। m का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कितना दिया हुआ है, 5 kg। सो a will be equal to 10 by 5 which is 2। सो 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑलमोस्ट तीनों ऑप्शन में हमको एक्सेलरेशन जो है वो 2 दिया हुआ है। तो अब डिपेंड करता है आंसर तुम्हारे
इनवर्स एंगल पे, थीटा पे। अब थीटा कैसे निकालें? तो यहाँ पे 8 के साथ हमने एंगल निकाला, 8 के साथ वो कितने एंगल पे है वो हम निकाल सकते हैं थीटा के हेल्प से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर तुमको tan इनवर्स निकालना है, दैट एंगल थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन है एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है, अपोजिट में हमारा ये y एक्सिस वाला है विच इज 6 जे 6 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 8। तो ये जो है इसको सॉल्व करेंगे 3/4। तो थीटा बिकम्स इक्वल टू 3 tan इनवर्स ऑफ 3/4। और ये tan इनवर्स ऑफ 3/4 किसके साथ है एंगल, हमारे 8 न्यूटन वाले फोर्स के साथ है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन एंड tan इनवर्स ऑफ 3/4 is the direction with 8 Newton force. So the fourth answer, fourth option is correct. अगर तुम देखोगे तो बहुत से जो आंसर है वो इतने भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ऐसे सवाल दिए हुए हैं इस बार। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं हम, 23rd क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसिडर टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर of equal capacitance 200 picofarad, picofarad है 10 raised to minus 12. One of them is charged by the 100-volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to the uncharged capacitor. Amount of electrostatic energy lost in the process is. अब ये जो है हमारा एक कैपेसिटर है जो 200 पिकोफेराड का है। अब वो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना एनर्जी था। 200 पिकोफेराड मतलब क्या है, 200 इंटू 10 रेस टू माइनस 12, ओके, 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 10 फेराड, इतना हमारा कैपेसिटेंस है। और उसको कनेक्ट किया 100 वोल्ट से, तो 100 वोल्ट से कनेक्ट किया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है वो, लेट मी चेक वंस। तो हमारा जो फॉर्मूला है एनर्जी के लिए, दैट इज यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, दैट्स आवर फॉर्मूला। हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी का वैल्यू ऑलरेडी पता है हाफ, सी का वैल्यू पता है 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 10, सी वी का स्क्वायर, वी इज 100 विच इज 10 रेस टू 4, इट बिकम्स स्क्वायर जो है 10 रेस टू 4 होता है, इट इज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 6। इतना हमारा एनर्जी है। तो 10 रेस टू माइनस 6। तो एक्चुअल एनर्जी जो है, इनिशियल एनर्जी हमारा इतना है, फाइनल एनर्जी कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो फाइनल एनर्जी कितना होगा, फाइनल एनर्जी विल बी, फॉर दैट वी विल हैव टू चेक वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है वो हमारा 100 था, बट जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों कैपेसिटर्स को, तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो होगा 100 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 50 वोल्ट इन दिस केस। तो अब दोनों के केस में जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है यू फाइनल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू इंडिविजुअल उनका जो एनर्जी है वो 2 इंटू हाफ सी वी स्क्वायर। सो 2 इंटू हाफ मतलब वो 1 हो जाएगा, सो सी वी स्क्वायर दैट बिकम्स इक्वल टू, सी का जो वैल्यू है वो है हमारा, हाउ मच इज इट, 200 पिको फेराड इंटू 10 रेस टू माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय v का जो वैल्यू है वो है 50, देयरफॉर इट बिकम्स 2500। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 25 इंटू 2 विच इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू 10 रेस टू माइनस 8,
विच इज नथिंग बट 0.5 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे हमको कितना मिला था एनर्जी? थोड़ी देर पहले जो हमने एनर्जी निकाला था वो था ऑलमोस्ट, तो इट वॉज 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻⁻6 आया। ये हमारा इनिशियल था और ये हमारा फाइनल है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। सो 1 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻6, इट गिव्स यू 0.5 इंटू 10⁻⁻6, दैट्स योर इन जूल, that's your energy loss here. So the answer is this. यहाँ पे जो टिक के है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, यहाँ पे जो टिक के है वो करेक्ट आंसर नहीं होंगे हर बार, तो करेक्ट आंसर आपको निकालने होंगे। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ वही करेक्ट आंसर है, जो ऑलरेडी टिक किया हुआ है उनको मत देखिए। ओके, let's jump to the next question. Next question is, the power of a crane which lifts the mass of 1000 kg to a height of 20 meter in 10 second is। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे सिंपली यू नीड टू यूज द डेफिनेशन ऑफ पावर एंड दैट इज इक्वल टू P इज नथिंग बट W अपॉन T इन दिस केस। सो वर्क डन कितना हो रहा है? वर्क डन हमारा हो रहा है 10 केजी के जो मास है उसको हम उठा रहे हैं 20 मीटर तक, तो 10 केजी और जी तो फोर्स होगा, वर्क डन इज नथिंग बट F इंटू एस, तो फोर्स जो है 1000 इंटू, सॉरी 10 नहीं 1000 केजी था, 1000 इंटू 9.8, सो दैट गिव्स यू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिल रहा है? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 इंटू 100,000, sorry, so that gives you 2 into 10 raised to 4 watt, or we can say near to 20 kilowatt। so near to 20 kilowatt कौन सा आंसर है? ये देखो यहाँ पे थर्ड, अप्रोक्सीमेटली 20 किलोवाट के आसपास आ रहा है, विच इज इक्वल टू 19.6 किलोवाट। अगर तुम इसका कैलकुलेशन करोगे 19.6 ही आएगा। एग्जैक्ट नंबर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जब ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो कैलकुलेट करने के लिए आसान है उनको लेके तुम कैलकुलेट कर सकते हो और आंसर तुमको इजीली मिल जाएगा, कैलकुलेशन में ज्यादा वक्त नहीं जाएगा। ओके, let's jump to the 26th, sorry, 25th question. Now here, okay, यहाँ पे अब क्या है? इन वर्नियर कैलिपर 20 VSD coincides with the 16 MSD। तो वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर, मतलब MSD का जो हर डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर जितना होता है। ओके, तो MSD का जो है वो 1 मिलीमीटर है। एक जो डिवीजन है उसका वैल्यू है 1 mm, और हमको निकालना पड़ेगा जो VSD है, वर्नियर स्केल है, उसके एक डिवीजन का वैल्यू कितना है। ओके, तो उसके एक डिवीजन का वैल्यू कैसे आएगा? देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 16 डिवाइडेड बाय 20, ये हमको करना पड़ेगा। तो ये कैसे आता है? तो ये बेसिक मैथ्स तुम यूज कर सकते हो। एक के लिए सपोज है x, 1 डिवीजन ऑफ VSD इज x, सो 20 डिवीजन का कितना है? 20 डिवीजन का है तुम्हारा 16, तो तुम अगर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 16 अपॉन 20। तो ये इस तरह से हमको x मिल जाएगा, एक डिवीजन की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी आ रही है देखो, अगर तुम सॉल्व करोगे इट बिकम्स 8/10 विच इज 0.8। अब यहाँ पे जो है
हमको लीस्ट काउंट निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये नॉर्मल वाला नहीं है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन किसका होगा, MSD के 1 डिवीजन का वैल्यू माइनस VSD 1 डिवीजन का वैल्यू, ओके। तो MSD का है 1 और VSD का है 0.8, दैट गिव्स यू 0.2। दिस इज योर लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर, सो आंसर है फर्स्ट, ये लीस्ट काउंट है। Okay, let's jump to the 26th question. When a ruler falls vertically, 5 different person catch it with the different reaction times. G is 9.8 meter per second square for every person. Okay, हर किसी का जो रिएक्शन टाइम है वो हमको मिला है, वो हमको गिवन है। अब रिएक्शन टाइम मतलब तुम जैसे ही देख रहे हो स्केल को गिरते हुए, तो जैसे ही देख रहे हो तो तुम कितने कम समय में या कितने समय में रिएक्ट करके उसको कैच कर रहे हो, वो जो टाइम है वो कितना लग रहा है तुमको, दैट इज योर रिएक्शन टाइम इन दिस केस। तो रूरल कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमको निकालना है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूरल। तो रूरल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमको निकालना है। देखो अब जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है तो वो ज्यादा देर लेगा उसको कैच करने में, जितना ज्यादा देर लेगा उतना ज्यादा वो ट्रैवल करेगा स्केल, इजंट इट। तो जितना ज्यादा उसका रिएक्शन टाइम होगा उतना ही तुम्हारा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगा। तो रिएक्शन टाइम जितना ज्यादा है उतना ही डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे रिएक्शन टाइम किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम है बी का। तो इन दिस केस बी की जो है वो फर्स्ट होना चाहिए, सबसे ग्रेटर होना चाहिए बी का डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, तो बी का डिस्टेंस ट्रेवल दो इसमें है जो ग्रेटर में है, और उसके बाद किसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है वो है ई का। तो यहाँ पे आएगा ई, सेकेंड में यहाँ पे भी ई है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है ए, ए दोनों में ही है। लास्ट में आता है डी, तो डी किस में है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये कौन सा था, 26 था। लेट्स सॉल्व द 27th क्वेश्चन। A uniform metallic wire having a resistance 4 ohm is bent to form a square loop ABCD. See the figure. A resistance of 2 ohm is connected between the point B and D. The battery of 2 volt is connected across the A and C shown in the figure. Now the value of the current I is, अब तुमको I का वैल्यू निकालना है, उसके लिए तुमको ये जो रेजिस्टेंस का सर्किट है वो सॉल्व करना है। बट यहाँ पे तो एक ही रेजिस्टेंस दिख रहा है ऐसे तुमको लगेगा, बट देर आर टोटल 5 रेजिस्टेंस। ये जो वायर है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी है, इन चारों वायर्स का जो है अपना अपना रेजिस्टेंस है। और कितना होगा, क्योंकि उनकी लेंथ इक्वल है तो उनका रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअल रेजिस्टेंस था तुम्हारे टोटल कंप्लीट वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारा 4 ओहम। तो हर किसी की लेंथ इक्वल है तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 वायर्स बने तो हर किसी का रेजिस्टेंस होगा 1 ओहम।
अगर तुम चेक करोगे यहाँ पे, अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर तुम चेक करोगे तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है. It satisfies the balancing condition for Wheatstone bridge. That means the current flowing through this resistance will be 0. तो इसको हमको इंक्लूड ही नहीं करना है, उसका कुछ जरूरत भी नहीं है. तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो ये सीरीज में है तो ये हो गया 2, ये भी सीरीज में है तो ये हो गया 2. और हमको ऑलरेडी पता है पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होंगे तो वो अगर इक्वल रेजिस्टेंस होंगे तो उसके लिए क्या करना है, 2/2 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, दैट गिव्स यू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे जो है वैल्यू 2 है, 2/2 1, सो आर ई बिकम्स इक्वल टू 1. तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है और हमारा जो ईएमएफ है वो है 2 वोल्ट. हमको निकालना है करंट. करंट कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर. ये जो ओम्स लॉ है ये हमको यूज करना है. तो यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू V अपॉन आर ई, that is equal to 2 volt, 2 ampere, or 2 ampere. This is the right answer. Let's jump to the next question. A room heater is rated as 400 watt, 220 watt, 400 watt and 220 volt. If the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed approximately? वो कितनी होगी, वो हमको निकालना है, पावर कितनी होगी. अब वो कैसे निकालेंगे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. Okay, so let's jump to the next question, which is 28th question. A room heater is rated as 400 watt and 220 volt. If the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed? तो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो हमने चेंज किया है उस हीटर का, बट उस हीटर की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस तो दोनों केस में कांस्टेंट ही होगा. तो उसका रेजिस्टेंस पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि कितना है, उसी के हेल्प से हम निकाल सकते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वी ऑलरेडी नो कि एक फॉर्मूला है हमारे पास पावर का, वो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू हाउ मच इज R इंटू V स्क्वायर. इज इट करेक्ट? No, it is actually incorrect. The correct formula is V square upon R. This is your correct formula. You just need to calculate R. So for that you will write R is equal to V square upon P. अब हमारे पास V स्क्वायर की वैल्यू है, V स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 22 का स्क्वायर. वो कितना होता है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, सो 22 का स्क्वायर कितना होगा, it is I guess 1 to 1 multiplied by 4, 484, 48400 डिवाइडेड बाय पावर कितनी थी, पावर है 400. तो ये हो जाएगा कट 4 1 4, 1 to 1. दैट्स योर रेजिस्टेंस R.
अब हमको रेजिस्टेंस मिल चुका है, हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअल पावर जो वोल्टेज चेंज होने के बाद हमारे पास होगी। ओके, तो वो कितनी है हमारी पावर? सो दैट पावर विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू, अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो होगा इन दिस केस 40000, करेक्ट, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 121। अब इसका जो वैल्यू है वो हमको निकालना पड़ेगा, कितना आ रहा है। तो ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया था, लेट मी चेक कितना आया था। अराउंड 331 वैट इतना आया था इसका, अगर हमने डिवीजन किया तो उतना ही आ रहा था। ओके, सो इसका जो आंसर है वो है 331 वैट। इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट एज यू सी, करेक्ट। इसको मैं 11 से डिवाइड किया था, 2 बार 11 से डिवाइड किया था और आंसर कैलकुलेट किया था। ओके,